Hi Anjali, welcome on Cine Speaks. How are you? I'm good. How are you? I'm perfectly fine, thank you so much. तो अंजलि बताइए कैसी हैं आप? कैसा है वेदर अब वहाँ का क्योंकि आप इंडिया में नहीं हैं ऑफ कोर्स. जी वेदर बहुत अच्छा है. इट्स समर टाइम एंड परफेक्ट टाइम. अर्ली मॉर्निंग. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल डे. ओके ओके सो मैं अपने क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ अंजलि बिकॉज मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस और मैं सब नोट डाउन करके आई हूँ आपके लिए. सो yeah, so my first question is कि Indian textiles and handwork has been gaining popularity in the recent years, but you have always tried to blend Indian tradition with Western culture through your work. Was this fusion a conscious decision since the beginning? Yes, because here we have very diverse people from diverse group, and Indian handcraftsmanship has been loved over the years. Hmm. But when you have Western clientele, they want to see that fusion. So I try to marry the culture like West and Indian, and it turns out so beautiful, and people admire. And I try to incorporate our Indian touch in every piece I create. Okay, okay. So did you ever get the fear of failure as you navigate the global fusion landscape? See, I'm not doing this for winning. When we have a fear of failure when we are doing this for race or winning, that's not my goal. I am doing this out of passion. Okay. That's coming from a soul. So I don't have, and I'm not competing with anyone. Every day I'm trying to improve myself, Hmm. learn from my craft, and there is a storytelling in each piece I create. So no. Okay, okay. You have said style is a language, but would you agree that not many people understand it? Yes, because everybody is different. Every individual is different. So I cannot expect everyone to understand my craft and admire it. Yeah. Even though I feel I'm truly blessed because इतने सारे लोग आके इतना प्यार देते हैं कि मैं every day my soul is soaked in gratitude कि मैंने ऐसा क्या किया है to receive such level of admiration. Because when I look at other people, there are so many good designers, so many people I learn from, and I look up to their craft. So yes, सबको समझ नहीं आता है, बट जितना प्यार मिलता है मुझे लगता है पता नहीं मैं उसके भी लायक हूँ या मैंने उतना भी कुछ किया है, तो उसका बहुत ग्रेटिट्यूड है मेरे मन में. So sweet. There has been a lot of talks about cheap and classy, and many say there is a fine line between them. How would you describe that fine line? ते कहते हैं ना वो ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ अ बिहोल्डर. Yeah, सो yeah. अब ये चीप शब्द ही बड़ा हैवी है. सो so The yes, low there is a level, you fine. can say कि low level. Yeah. हाँ जी. तो Mm. जैसे एक मैं बोलती हूँ कि आई डू मेंस ऑल्सो, आई डू ऑल एवरीथिंग एंड मोस्टली फोकस्ड ऑन वुमेन. Mm. And my work is more like inspiring women and women empowerment. So I believe women means grace. Mm. तो ग्रेस क्या है ना, आपकी ऑरा में होती है और वो आपके Right. काम में उतरती है. तो जितना ग्रेसफुल काम होगा, Mm. जितने उसको बारीकी से किया जाएगा और जितने अच्छे तरह से उसे प्रेजेंट किया जाएगा, वो उतना ही ब्यूटीफुल लगेगा. बिकॉज Mm. खूबसूरत दिखने के लिए आपको लो लेवल जाने की जरूरत नहीं है. सबसे ज्यादा ब्यूटी ग्रेस में और सिंप्लिसिटी में. यू Correct. डोंट हैव टू गो overboard, wear short dresses, or maybe wear too blingy, or Mm. go try to be someone else. You can still be yourself and look beautiful. You can pick very high quality sustainable one Mm. piece and rewear it over and over. That is grace, that is class. Okay. So would you agree that instead of following trends, people should try to build a style based on their personality? यस, ट्रेंड्स कौन बनाता है? Mm. आपको ट्रेंड्स के पीछे क्यों भाग रहे हैं? और सब कुछ सब किसी के लिए नहीं होता. सो आई डोंट बिलीव इन ट्रेंड्स. आई मीन वर्क व्हाट फील्स गुड टू यू. आई मीन फैब्रिक कहते हैं ना, उसको छूते हैं तो आपको फील होता Correct. है कि द Correct. क्वालिटी. Mm. आपको क्या अच्छा लगता है, आपको किस चीज में कंफर्टेबल लगता है. आई हैव डिजाइंड sport shoes with bridal lehengas because bride wanted to be feel comfortable. She wanted to dance the night in. Mm. So आपको कैसा कंफर्टेबल है. अभी कोई ब्राइड आती है, वो बोलती है कि मुझे 6 इंच हील पहनना है.
that feels good to her, so that's right for her. But that cannot be trend for everyone. So Hmm. I don't believe in trend, and I don't recommend people to fall for trends. Okay, okay, okay. How do you approach styling personalities who come from different culture and fashion backgrounds? That's a very deep question. Hmm. Styling personality. So हम बेसिकली स्टाइलिंग का मतलब क्या है ना कि आप जैसे हो उसका बेटर वर्जन क्रिएट करना, उसको निखारना, ना Hmm. कि आपको बिल्कुल ही बदल देना ना। Right. मतलब जो चीज भगवान ने या कुदरत ने बनाई है उसे तो कोई भी नहीं That we बदल can't सकता। change. Yes. Yeah. बट द गोल शुड बी आपका ऑरा कैसा है और उसको मैं कैसे निखार सकती हूँ। से फॉर एग्जाम्पल Hmm. देर आर कूल कलर पैलेट्स, वार्म Yeah. कलर पैलेट, Yeah. आपके स्किन टोन पे क्या जाएगा। देर आर डिफरेंट बॉडी टाइप्स सच एज पेयर शेप, एंड देर आर डिफरेंट शेप्स फॉर द डिफरेंट बॉडी टाइप। Hmm. तो उन पे कैसे क्या अच्छा लगेगा। इफ समवन वांट टू लुक स्लेंडर, दे वांट टू लुक टॉल, तो Hmm. स्टाइलिंग के अंदर वो सब चीजों को इनकॉर्पोरेट करके हम कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे पास स्टाइलिंग के लिए आ रहे हैं उनका बेटर वर्जन हम क्रिएट करें, एंड सो दे फील मोर Comfortable. confident, and above all they should feel comfortable in that style. Absolutely. Yes. Yes. मतलब आप बैठे हो, आपको समझ नहीं आ रहा, ये आपका Hmm. यहाँ से सेट नहीं है, यू फीलिंग अनकंफर्टेबल कि Hmm. दिस पार्ट ऑफ माय बॉडी आई डोंट वांट टू शो, एंड Hmm. you're constantly trying to hard. So I feel Okay. that's a big failure. Your client should be comfortable in whatever they're wearing. Okay. Okay. So you have designed for both high-profile public events and deeply personal moments like Amir Khan's daughter's wedding. How do you shift gears creatively between culture meant for the spotlighting and for the soul? मुझे लगता है कि इट फ्लोज सो एफर्टलेसली कि मुझे पता ही नहीं चलता। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, बहुत सालों से चला रहे हो, यू सो यूज्ड टू ऑफ इट, Hmm. Hmm. and I truly enjoy doing, understanding the craft, learning about different cultures. अब Hmm. हमारे इंडिया में भी अभी शादियां इतने एडवांस लेवल पे होने लगी है कि पीपल हैव थीम फॉर डिफरेंट इवेंट्स। Correct. So Hmm. I feel it just flows, and it just gives me so much happiness to do different kind of a craft, and I look at different sort of work as a different opportunity for me to learn and get better Hmm. at my craft, because मैं इंडिया में भी काम कर रही हूँ, और not only in America, like I have a global presence because I have showcased in Paris, Milan, or can मतलब different different countries में, because I like to take my craft there Hmm. and we create something different. So वो मुझे एक खुशी मिलती है, कुछ Hmm. अलग करने में, learning, and I just feel blessed. तो ऐसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट करना मतलब हाउ डज इट फील? अच्छा लगता है अपनी कंट्री को लेके जाना, अपने कल्चर को लेके जाना, क्योंकि भले ही मैं वेस्टर्न डिजाइन कर रही हूँ, गाउन कर रही हूँ, तो भी मैंने शिव शक्ति कलेक्शन किया था। सो वी हैड ओम, वी हैड त्रिशूल, वी हैड स्वास्तिक, बिकॉज ये चीजें कितने सेंचुरीज से चली आ रही हैं और इनके पीछे बहुत गहरा मतलब है। इट राइट। जस्ट द एनर्जी, सो आई लाइक टू पास ऑन टू। और जो हमारी यंगर जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, वो बैठ के देख रहे हैं, व्हाट इज टेक अवे फ्रॉम देम। करेक्ट। फैशन इज so meaningful, and when we incorporate such cultural things, it becomes even more meaningful. So सबसे ज्यादा सी देखिए, फैशन और आर्ट, पेंटिंग आर्ट, बहुत सारे तरह के क्राफ्ट्स है, वो सब चलता रहेगा, और आगे आने वाले समय भी बहुत सारे डिजाइनर्स आएंगे। बट मुझे लगता है कि हमने पास ऑन क्या किया, उसके पीछे पर्पस क्या है, उसके पीछे मीनिंग क्या है। जैसे अभी आई वाज टॉकिंग टू माय डॉटर एंड शी टोल्ड मी yesterday she like to design and sew herself, ओके। कि mama, my purpose of life is to find the purpose of my life. So I was kind of intrigued by what she said, कि वो जिंदगी क्या है जिसमें कोई पर्पस ही नहीं है, राइट? तो कुछ पास ऑन कर रहे हैं अपना कल्चर, वो मुझे सबसे ज्यादा सुकून देता है। मतलब मुझे ये नहीं लगता कि मैं हूँ ले जाने वाली, मतलब मेरी क्या हस्ती है। आई थिंक गॉड हैज चोजन मी टू टेक दिस फॉरवर्ड, एंड आई टेक इट एज अ ब्लेसिंग।
Okay, super. So, as a CFDA member representing South Asian culture, do you feel a sense of responsibility to amplify underrepresented voice in mainstream fashion? How do you navigate that space? Yes, so that happens with the effort of a team. Like, see, I am the face, I am the founder of the brand, but Hmm. उसके पीछे कितनी टीम काम करती है, कितने कारीगर काम करते हैं. Yes, Hmm. definitely there's a sense of, I won't say pressure, there's a sense of responsibility to Hmm. show the craft in a manner that Hmm. is true to itself. बिकॉज हमारे इंडिया में इतनी डिटेल्ड क्राफ्टमैनशिप है कि किसी भी कंट्री में नहीं है. तो Hmm. मुझे लगता है कि वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसके साथ में हमारी कोशिश ये रहती है कि हम स्मॉल बिजनेसेस को अपलिफ्ट करें, वुमेन वीवर्स को अपलिफ्ट करें, क्योंकि मैंने बहुत जगह साड़ीज को प्रमोट किया है. दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर कंट्री, Hmm. जो कि धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन के जमाने में एक फेड होता दिखाई दे रहा है. लोग सोचते हैं कौन ड्रेप करेगा. Hmm. हर प्लीट के पीछे एक मतलब है, हर अ, पल्लू. और मतलब आप देखो कि हमारे पीछे टाइम में आप जाओ तो हमारी ग्रैंड मदर्स दे यूज्ड टू ड्रेप Right. साड़ी. Right. तो थ्रू CFDA आई लॉन्च्ड माय साड़ी कलेक्शन देयर, एंड वो भी हमने इंडिया के वुमेन वीवर्स से, ताकि हम उनको भी एक इनकम का सोर्स दे सकें. और अभी मैं हाल ही में श्री श्री के ब्रांड है इंडिया में, जो कि Hmm. Hmm. वुमेन वीवर एंड चिल्ड्रन स्कूल को भी सपोर्ट करते हैं. हर साड़ी की सेल के पीछे एक Hmm. बच्चे की एजुकेशन, सिर्फ Okay. $200 में बच्चे को किंडरगार्टन से Hmm. हाई स्कूल तक की एजुकेशन फ्री मिलती है. तो उस तरह के कॉजेस को भी मैं लेके जाती हूँ Hmm. क्राफ्ट के साथ, कि हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं, और हम अपना ट्रू आर्ट दिखा रहे हैं, ना कि वेस्टर्नाइज ग्लैमर. जबकि आप इंडिया में जाओ तो अभी चीजें 360 डिग्री चेंज हो गई हैं. Correct. Correct. तो पुराने क्राफ्ट को दिखाना और उसे वापस से रिवाइव करना, आई थिंक दैट्स माय गोल. Okay, okay. So with nearly a million followers and massive monthly reach on Instagram, your digital influence is undeniable. What's your strategy for maintaining authenticity while managing a brand, a cause, and a community online? So, the first thing, I am not competing with anyone and I'm true to myself. Okay. और जो मैं कर रही हूँ दैट्स अ पैशन ड्रिवन, क्योंकि मैं किसी रेस में नहीं भाग रही हूँ कि आपके 10 मिलियन है तो मुझे क्या स्ट्रेटेजी. सो टू बी ऑनेस्ट, Hmm. within 3 years span of 3 year time I have grown exponentially. Hmm. और ना कभी मैंने इसको स्ट्रेटेजाइज किया था, ना प्लान किया था. मैं तो इसे एज अ फन, मेरा कॉर्पोरेट करियर रहा बहुत सालों का. लाइक, Hmm. 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 तो मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस चीज को फुल टाइम परस्यू करूंगी. तो Hmm. देयर वाज एब्सोल्युटली नो स्ट्रेटेजी. बट यस, व्हेन यू आर कंसिस्टेंट इन समथिंग, आप उसको छोड़ते नहीं हो ना फ्रस्ट्रेट होके कि कोई मुझे देख नहीं रहा. एक लाइक है, 2 लाइक है, 4 लाइक है, 2 फॉलोअर्स है, कोई फर्क नहीं पड़ता. व्हेन यू डू इट फॉर योर सेल्फ, यू Yes. मैग्नेटाइज. लाइक, क्योंकि एक गार्डन में फ्लावर है ना, उसमें से तो खुशबू आएगी, एंड दैट विल नॉट बी फ्रेग्रेंट ओनली बिकॉज यू आर स्मेलिंग, बिकॉज दैट इज द प्रॉपर्टी. Wow. So I'm just being myself, and people are loving me. That is like, I'm so great. Wow. God has been very, very kind. 100%. And your award-winning film inclusion through Unity has been recognized at Cannes and beyond. Has storytelling through film the influence how you tell stories through fabric? So yes, that was a short film I made for my brand to promote inclusivity, and uh, promote gender diversity. कि हमारे इंडिया में there is still taboos. People are not talking about Mm. inclusive fashion, and I never thought कि ये इस फिल्म को इतना बड़ा अवार्ड मिलेगा. और यस, आई लव फिल्म मेकिंग बिकॉज मैं उसे भी एक आर्ट के तरीके से देखती हूँ. Okay. मतलब आर्टिस्ट की सोल है ना, तो मुझे अच्छा लगता है. और फिल्म मेकिंग भी, देयर हैज टू बी स्टोरी. पीपल शुड टेक अवे समथिंग, शुड Mm. लर्न समथिंग. Mm. Speaking about that, I'm working on couple more short film and documentaries.
and which I'm very excited. This year has been a blessing. Wow, so good. So your work is deeply rooted in empowerment and identity. How do you weave those values into your creative process, especially when dressing clients for global events that often prioritize trends over tradition? आप इस क्वेश्चन को रिपीट करेंगे? मैंने फर्स्ट पार्ट प्रॉपरली सुन नहीं पाई Your मैं. work is deeply rooted in the empowerment and identity. How do you weave those values into your creative process, especially when dressing clients for global events that often prioritize trends over tradition? यस, सो सब लोग ट्रेंड्स के पीछे भाग रहे हैं और मुझे लगता है कि देयर हैज टू बी ए समवन जो ऑथेंटिक है, जो वो कर रहे हैं, अपने कल्चर को दिखा रहे हैं. क्योंकि जैसे हाल ही में मैं कैंस रेड कारपेट में गई और मैंने बोला भी, मतलब मैं 5 साल से जा रही हूँ एंड आई कुड हैव worn Yeah, like the most expensive gown. I have yeah, dressed thousands of models from Miss World, Miss Universe. You just name the runway, and I had the ability to do that. But I was like, but what is me? What is the true representation? In similar way, whenever I'm dressing client for a global runway or a global platform, तो hmm, मुझे वही लगता है कि क्या मैं ऐसा करूं कि उसके अंदर ऑथेंटिसिटी हो, हमारे कल्चर की रिप्रेजेंटेशन हो. तो मैं शिव शक्ति को लेके गई. I wore orange and I wore Rudraksha, which was given to me by my guru, Sadguru, during hmm, Shambhavi, hmm. Mahamudra and inner engineering. So, मुझे अच्छा लगा. I feel accomplished कि मैंने कुछ किया and some लोगों ने कुछ सीखा. People have learned and I was able to inspire people in a good way. जहाँ की लोग सिर्फ ट्रेंड और एक शॉर्ट टर्म चीज के Yes, पीछे yes. भाग रहे हैं. Hmm. हर चीज में if you try to be yourself and you're trying to give something positive, because इतनी सारी negativity हो चुकी है. And I feel life is too short. You have to be kind towards yourself and others and try to do positive. जितना अच्छा कर सकते हो, radiate positivity, because that spreads. आपका aura अच्छा है, काम अच्छा है, तो definitely people will learn and do good. 100%. And as you said that you have already conquered runways, red carpets, and even Times Square as a designer, entrepreneur, and storyteller. So what's next on your horizon? Oh my God, there is too much in my plate, Richa. Like, I don't know how much I've traveled this year, like so many countries, and I have so many shows in pipeline, uh, um, and films. But the most exciting thing is showcasing in India. I have never gotten the opportunity to showcase my collection in India, Okay. which is in pipeline, and I'm so much looking forward to showcase in my country, because I have showcased globally, but not in India. I'm originally born there, brought up there, so that is something very very excited, and truly looking forward to that. When you're coming here, Yes, कब आ I रहे हो? am. Yes. Hopefully, year end. Okay. Okay. And where do you stay right now? I'm in Ohio, so yes, home is Ohio, but I travel between New York and Ohio a lot because I do have a very high presentation in New York. I do a lot of runways. I do have my garment in a lot of stores and boutiques. So yes, New York is home. I will not take much time of yours. बस एक क्वेश्चन है जो अभी recently you must have heard about the tragedy which had happened in Ahmedabad. So, कुछ बोलना चाहेंगे आप उसके ऊपर? मतलब ऋचा, शब्द ही नहीं है. मैं सिर्फ एक ये मैसेज देना चाहूंगी कि जिंदगी कितनी अनप्रिडिक्टेबल है, कि एक अगले पल क्या हो सकता है. प्लीज बी ग्रेटफुल टू वॉट एवर गॉड हैज गिवन. कि सुबह सो के उठना, आँख खुलना भी एक बहुत बड़ी ग्रेटिट्यूड की बात है. और प्लीज बी काइंड टू अदर्स. हेल्प. आप किसी को मदद कर सकते हो आपके सोर्स से. कोई किसी को की दुआ दुआ ले सकते हो, किसी का भला कर सकते हो, तो प्लीज बी काइंड. जब हम ऐसी न्यूज सुनते हैं चोरी की, रेप की, एंड देयर आर सो मेनी Yes, yes, yes. negativity and harsh things are happening, क्या लेके जाओगे. जो भी लोग गए हैं खाली गए हैं. देखो आप, कोई अपनी फैमिली को लेके जा रहा था, किसी के पेरेंट्स जा रहे थे. इट फील सो हैवी. और
मेरा भाई सेम फ्लाइट में लंदन एक दिन पहले गया है, Oh, इंडिया आया हुआ था वो 1 वीक के लिए, ही लिव्स इन लंदन okay. एंड ही वाज इन द सेम फ्लाइट, ही वेंट फ्रॉम अहमदाबाद, फ्लाइट नंबर भी सेम था। और मैं सुबह सो के उठी, बिकॉज मैं अमेरिका में हूँ तो मुझे आई लूज ट्रैक सम टाइम, एंड आई ट्रैवल सो मच कि इंडिया में क्या टाइम है, लंदन में क्या है। Yes, तो yes. मैंने वो सुबह उठ के न्यूज देखी, तो मुझे पता नहीं वो पहुंच गए हैं, मतलब वो एक पल रिचा मेरे लिए इतना हैवी था कि शब्दों में बयां करना नहीं है आसान। बट प्लीज बी काइंड एंड बी ग्रेटफुल, क्योंकि यू डोंट नो नेक्स्ट मोमेंट आप हो या नहीं। Absolutely. And do you think कि लोग कह रहे हैं कि 2025 is not good? जब से स्टार्ट हुआ है समथिंग और अदर इज हैपनिंग लाइक पहलगाम अटैक एंड अभी आपने सुना होगा कि किसी वाइफ ने हस्बैंड को मार दिया और ये तो किस्से बैक टू बैक एक दो तीन सेम किस्से सुनने में आ रहे हैं नाउ दिस हैपेंड सो डू यू थिंक द सेम कि 2025 में देयर इज सम प्रॉब्लम स्टार्टिंग से ही सी, ये बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट ये सब प्रिडिक्शन कर रहे हैं, एंड आई डू बिलीव कि स्टार्स में, एस्ट्रोलॉजी में पावर है जो स्टार्स की अलाइनमेंट बता रहा है। बट मुझे लगता है कि अगर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के ऊपर लोग अच्छी तरह से रहना और अपने कर्मास को सुधारना शुरू करें, आई मीन ये मेरी लाइन नहीं है, बट मैं बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करती हूँ। और स्पिरिचुअलिटी का मतलब मेरे लिए माला जाप करना नहीं है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब है अच्छे कर्मा करना। अगर आप प्रेमानंद जी को सुनो, आप लोगों अच्छे कर्मा करो और प्लीज बी गुड। अगर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पे पॉजिटिविटी बढ़ेगी तो ये सब चीजें डेफिनेटली रिड्यूस होंगी, ये जो भी चीजें होनी है। बाकी कहते हैं कि ये तो प्री निर्धारित है, होने को कौन टाल सकता है। अगर उनका जाना उस समय और उतनी ही आयु निर्धारित थी तो उन्हें उतना ही रहना था। बट फिर भी मैं मानती हूँ अच्छे कर्मा और पॉजिटिविटी से हम इन चीजों का इफेक्ट थोड़े हद तक कम कर सकते हैं। बिल्कुल सही बोला अंजलि आपने एंड सच में जो भी हो रहा है वो बस रुक जाए जो भी हो बस 25 अब आगे अच्छी खुशियां लेकर के आए हम सब यही यस, चाहते हैं और आपके यस। लिए भी फॉर श्योर अंजलि बहुत सारे प्रोजेक्ट बहुत सारी चीजें और आपके सारे ड्रीम्स को सच करे ये 25 और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड इट वाज Thank लवली you. टॉकिंग टू यू लवली यू Thank सच you. में Thank you. God bless you, and may God bless everyone. And let's say a prayer for the peace. यस Om Shanti. एब्सोल्युटली Om Shanti. And may all the people get peace and some Shanti. It's hard to say. It's very heavy for the families. yes yes that is very scary as well yes. Yes, yes. Yes. Thank you so much, Anjali. Please do take care and come soon. We are waiting for you. India is waiting for you. Bye. Thank you so much. Looking forward. Take care. God Take bless care. you. Bye.